So hello everyone, welcome to the second episode of Mission INICT. Thank you for such an overwhelming response to the very first episode of Mission INICT जहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़। बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जो INICT के PYQs थे एंड हमने देखा कि कैसे INI सेट ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एंड दे आर वेरी सिंपल, बस तुम्हारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। So in this episode, I am about to discuss the radiological investigations which are very important from INICT point of view and are asked frequently from the topic of breast cancer radiological investigations. So ये जो breast cancer के radiological investigation है ये बहुत ही कम टॉपिक्स है जो बार बार INI सेट रिपीटेडली पूछता है। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम नोटिस किया है। सो उसी कंसेप्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछी जा रही है और क्या पूछा जा सकता है ये भी मैं तुमको एंड में बताऊंगा। पहले मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, देखो अगर तुमको वो आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट ऑल ऑफ देम। सो आई होप यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So we are beginning with the second episode of our mission INICT, which is the breast cancer radiological investigation. So let's begin. First of all, I will ask you some questions. Let's see if you are able to solve them or not. So this is the first question. I will suggest you to take a pause at every question. Try to solve them. If you are not able to solve them, no worries. We will solve it at the end of the chapter very easily. So let's see the questions one by one just for beginning. So this is the first question. Let's see if you are able to solve it. This is the second question. Pause and solve it. This is the third question. And this is the fourth question. This is the fifth question. And this is the sixth, seventh and the eighth question. I will consider it as a single question because all of them have something common, something very common concept. So if you were able to solve them, very good, no need to watch this video. But if you are not able to solve them, I bet that you will be able to solve each of them till the end of this very video with concepts very crystal clear. So let's begin with today's chapter. Very easy, a small topic. Let's begin. So the imaging modalities of breast cancer. The imaging modalities of breast cancer, there are mainly three imaging modalities: the USG, the mammogram and the MRI. Before beginning with it, we will first see some imaging modalities, the scoring of imaging modalities. तो ब्रेस्ट कैंसर का अगर हमने एक इमेजिंग मोडेलिटी किया है, चाहे जो भी क्यों, एक्सरे किया हो, दैट इज मेमोग्राम किया हो, एमआरआई किया, यूएसजी किया है, उसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जो बायरेट्स है। बायरेट्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनआईसीटी के लिए, दैट इज वाई बायरेट्स से शुरू करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ बायरेट्स? इट इज यूज टू एसेस द कैंसर रिस्क इन इमेजिंग। इमेजिंग में क्या चांस है कि इस पेशेंट को कैंसर है आफ्टर डूइंग एनी यूएसजी, एमआरआई या फिर मेमोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायरेट जीरो। बायरेट जीरो यानी देयर इज नॉट प्रॉपर एक्सपोजर, एक्सरे सही से नहीं हुआ है, रिपीट द एक्सरे। So there is no proper exposure. Repeat the mammogram. ठीक है। Bireds 1, Bireds 1 यानी the breast is normal. Bireds 2 यानी the patient has benign mass. Bireds 3 यानी the mass is probably benign. मीन्स द मास इज बिनाइन। अभी भी थोड़ा चांस हमको लग रहा है कि कैंसर हो सकता है, बट द मास इज प्रोबेबली बिनाइन। बायरेट्स 4 यानी देयर इज प्रोबेबली मैलिग्नेंट मास। बायरेट्स 5 मीन्स देयर इज हाई चांस ऑफ मैलिग्नेंसी। In Biret 6, Biret 6 is that the mass is malignant and it is proven in biopsy. Means biopsy ने already बता दिया कि mass malignant है. So what we have to do in case of Biret 0? Biret 0 यानी the breast X-ray was not properly exposed. We have to repeat the mammogram. In Biret 1 and Biret 2, it is a benign mass or a normal breast. So we will ask the patient to repeat mammogram after 1 year. In Biret 3, in which the mass is probably benign, मीन्स मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, तो हम चाहेंगे कि पेशेंट थोड़ा जल्दी आ जाए मैलिग्नेंसी होने से पहले. सो वी विल रिपीट मेमो आफ्टर 6 मंथ्स. ठीक है, रिपीट मेमो आफ्टर 6 मंथ्स. हमको 6 महीने बाद फिर से मेमोग्राफी रिपीट करना है. कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए. अब Biret's 4 यानी द मास इज प्रोबेबली मैलिग्नेंट एंड Biret's 5 यानी देयर इज हाई चांस ऑफ मैलिग्नेंसी.
In BI-RADS 4 and 5, we have to take the biopsy. They are indications of tissue biopsy. Do tissue biopsy. There are high chance that malignancy हो सकता है, तो टिश्यू बायोप्सी करके देख लेना चाहिए. Now there are some questions जो BI-RADS से डायरेक्टली पूछे जाते हैं. So these are the questions. जो BI-RADS 3 है, BI-RADS 4 को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है A and B and C में, एंड BI-RADS 5 है. BI-RADS 3 हमारा क्या था? BI-RADS 3 यानी देयर इज प्रोबेबली बिनाइन मास, उसमें द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इज लेस देन 2%. In BI-RADS 4A, the risk of malignancy is 2 to 10%. In BI-RADS 4B, it is 10 to 50%. And in BI-RADS 4C, it is about 50 to 95%. And in BI-RADS 5, the risk of malignancy is more than 95%. यानी there is more than 95% chance कि इसमें malignancy है इस मास में BI-RADS 5 में. BI-RADS 4A का क्वेश्चन पूछा जाता है. BI-RADS 4A यानी the risk of malignancy is 2 to 10%. So let's begin with the actual investigations of radiology in breast. So first of all, breast mammography. Breast mammography के also known as very important है. दूसरे नाम क्या क्या है breast mammography के? It is also known as breast X-ray. Mammography is also called as breast X-ray. It is also known as tomo. जो टोमोसिंथेसिस है, टोमोसिंथेसिस को हम बोलते हैं 3D मैमोग्राम. एंड नॉर्मल कन्वेंशनल मैमोग्राम भी आता है. कन्वेंशनल मैमोग्राम इज 2D मैमोग्राम. देन द अदर नेम इज ब्रेमस्ट्रालंग एक्सरे. दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेमस्ट्रालंग एक्सरे. ब्रेमस्ट्रालंग एक्सरे, दिस हैज बीन आस्क्ड वन टाइम इन PGI क्वेश्चन, सो इसीलिए मैंने बता दिया. दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेमस्ट्रालंग एक्सरे. नाउ इसमें दो व्यूज होते हैं. मैमोग्राम जब हम करते हैं उसमें दो व्यूज होते हैं, एक तो क्रेनियोकॉर्डल व्यू होता है और दूसरा मीडियोलेटरल ओब्लिक. एंड इट बोथ ऑफ देम हैज देयर ओन एडवांटेजेस. जो क्रेनियोकॉर्डल व्यू है उसमें क्रेनियो यानी ये क्रेनियम और नीचे कॉर्डल, इस वजह इसको क्रेनियोकॉर्डल व्यू बोलते हैं. क्रेनियोकॉर्डल व्यू में द मीडियल साइड ऑफ ब्रेस्ट इज विजुअलाइज बेटर. जो मीडियल साइड है ब्रेस्ट का वो अच्छे से विजुअलाइज होता है क्रेनियोकॉर्डल व्यू में, जबकि जो मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू है उसमें लेटरल साइड अच्छे से विजुअलाइज होता है. एंड जो एक्सिला होता है, जो ब्रेस्ट का एक्सिला होता है वो अच्छे से विजुअलाइज होता है. फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सिला. एंड जो मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू है वो ब्रेस्ट का ज्यादा मास कवर कर रहा है, दैट इज वाई एक वाइडर फील्ड देता है वो एक्सरे पे. सो वाइडर फील्ड ऑफ विजुअलाइजेशन. ठीक है, इसमें एक वाइड फील्ड मिलता है. दिस वर द टू विच आर द टू व्यूज, क्रेनियोकॉर्डल व्यूज एंड द मीडियोलेटरल ओब्लिक. एक में अच्छा मीडियल व्यू मिलता है और दूसरे में अच्छा लेटरल व्यू मिलता है. एक्सिला का भी व्यू मिलता है, एक वाइड फील्ड मिलता है जिसमें मैलिग्नेंसी अच्छे से डिटेक्ट हो पाए. नाउ व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ मैमोग्राम विच आर सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी. सबसे पहले एक राउंड मास मिल सकता है, एक ओवल मास मिल सकता है. द ओवल मास इज सजेस्टिव ऑफ बिनाइन मास, जबकि अगर राउंड फाइंडिंग आया मैमोग्राफी पे इट इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी. देन वी हैव इररेगुलर. इररेगुलर फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, जबकि ये एक ओवल फाइंडिंग है, या फिर रेगुलर वेल सर्कमस्क्राइब. वेल सर्कमस्क्राइब जो इररेगुलर है इट इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, जबकि जो वेल सर्कमस्क्राइब्ड है इट इज सजेस्टिव ऑफ अ बिनाइन मास. नाउ वी कम टू microcalcifications. The microcalcifications are suggestive of malignancy. Microcalcifications यानी when the calcification size is less than 0.5 millimeter. वो एक्सरे के वो मैमोग्राफी के मशीन में दिख जाता है साइज कितना है माइक्रोकैल्सिफिकेशन का. When it is less than 0.5 millimeter it is called microcalcification. And microcalcification में भी रिस्क किसका ज़्यादा है? When the microcalcification is stippling microcalcification, stippling या फिर clustered भी बोलते हैं इसको. Stippling और clustered microcalcification has the highest risk and the lowest risk is of diffuse microcalcification. Stippling microcalcification has the highest risk of malignancy. ये है टाइप्स ऑफ माइक्रोकैल्सिफिकेशन. माइक्रोकैल्सिफिकेशन के भी टाइप्स होते हैं. स्टिपलिंग या फिर क्लस्टर्ड माइक्रोकैल्सिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट चांस है ब्रेस्ट कैंसर का मींस मैलिग्नेंट होने का, जबकि जो डिफ्यूज है उसका लोएस्ट चांस है. दिस इज ऑल्सो एन एम्स क्वेश्चन, एक बार आ चुका है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टिपलिंग माइक्रोकैल्सिफिकेशन इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी. सो वी आर डन विथ मेमोग्राम. इतना ही हाई यील्ड कंसेप्ट है जो ब्रेस्ट कैंसर के मेमोग्राफी में पूछा जाता है. एंड अदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेमोग्राफी इज द स्क्रीनिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस
Mammography is the screening modality of choice for females more than 40 years of age. Females more than 40 years of age में it is the modality of choice. It is the modality of choice for screening. It is the investigation of choice for screening breast cancer in old females. Old females में क्यों? Because in old females the breast tissue is fibrofatty tissue. In young females the breast tissue is a dense tissue. Dense tissue को डिटेक्ट करने के लिए we have USG, we have MRI. तो young females के लिए हम कभी भी मैमोग्राम नहीं कभी भी हम मैमोग्राम यूज नहीं करेंगे, because in young females it will not be able to give a better visualization of the field of the X-ray. मतलब मैमोग्राम is better only for old females. It is the investigation of choice and it is the most frequently asked question कि मैमोग्राम एक हमको एज दे दिया जाएगा 40 ईयर से ज़्यादा है फीमेल, यानी हमको मैमोग्राम ही करना है, हमको USG MRI नहीं करना है. ओके, सो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन ओल्डर फीमेल्स. सो नेक्स्ट, मैमोग्राफी एक एक्सरे का एक्सपोजर दे रहे हैं. अगर फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में दे तो ही सेफ रहता है. सेकेंड हाफ में इट इज़ नॉट सेफ, बिकॉज सेकेंड हाफ में ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन को अगर रेडिएशन मिल गया तो उसमें ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि उसके वजह से जो एम्ब्रियो इफेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू USG. ओके, नेक्स्ट वी कम टू USG. सो USG इज डन फॉर फीमेल्स लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज. एक ही हमको एक बात याद रखना है कि मैमोग्राफी जहाँ भी अगर फीमेल का एज 40 से ज़्यादा दिख जाए वहाँ मैमोग्राफी करना है. अब USG इज डन फॉर फीमेल लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज एंड इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट फीमेल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. प्रेग्नेंट फीमेल अगर तुमको क्वेश्चन में दिख जाए हमको वहाँ पे मैमोग्राम या फिर MRI कुछ नहीं करना, USG ही ऑप्शन में है, USG मार्क करो. MRI कर सकते हैं इन स्पेशल केसेस, वो तुमको मैं बाद में बताऊंगा. सो USG is the investigation of choice for breast cancer found in pregnant female. Breast cancer is most commonly एक और चीज़ याद रखना है कि breast cancer is most commonly found in pregnant female. Okay, so what are the USG findings which are suggestive of malignancy? सबसे पहले ये देखो, ये taller है, so this mass is taller than wide. हाइपोइकोइक, हाइपोइकोइक यानी ये अंधेरा, अंधेरा को हाइपोइकोइक बोलते हैं, अंधेरा दिखने का हाइपोइकोइक. हाइपोइकोइक लीजन which is taller than wide lesion and ये कैसा irregular है, irregular lesion. These are all suggestive of malignancy. Hypoechoic, taller than wide lesion and ये तीसरा था हमारा irregular hypoechoic lesion. and we have अगर complex cyst, देखो ये complex cyst यानी क्या है? cyst यानी fluid filled lesion होता है, but इस fluid filled lesion में air कैसा होता है? मैमोग्राफी USG पे काला काला hypoechoic होता है. so this is the air and this is fluid. ये air था, दिस इज द एयर एंड दिस इज द फ्लूइड. सो एक ही सिस्ट में फ्लूइड और एयर दोनों मिलना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट. एंड द फाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्ट इटसेल्फ इज अ फाइंडिंग ऑफ मैलिग्नेंसी. अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट दिख गया यानी तुम्हारा ब्रेस्ट मास मैलिग्नेंट होने के चांसेस बढ़ गए. सो दिस कॉम्प्लेक्स सिस्ट इज ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एम्स क्वेश्चन. द ब्रेस्ट USG कैन डिटेक्ट लिम्फ नोड इन अबाउट 50 to 60% केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें क्लिनिकली यानी जब हमने पाल्पेट किया तब हमको कोई लिम्फ नोड पाल्पेट नहीं हुआ एक्सिला में, बट USG ऐसे केसेस में भी 50 to 60% चांसेस है कि ऐसे क्लिनिकली नेगेटिव लिम्फ नोड्स को भी USG डिटेक्ट कर लेगा. एंड अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट USG कैन नॉट डिटेक्ट मैमोग्राफिकली इनडिटेक्टेबल. ब्रेस्ट कैंसर मीन्स अगर मैमोग्राफी, अगर हमने एक पेशेंट में, हमारे पास दो चॉइस थे मैमोग्राफी करने का और USG करने का, हमने मैमोग्राफी किया. अगर मैमोग्राफी में हमारा ब्रेस्ट कैंसर का मास मैलिग्नेंट नहीं मिला, यानी मैमोग्राफी पे हमको वो मास है ही नहीं, मैमोग्राफी पे हमको अगर वो मास नहीं मिला तो हमको USG पे भी नहीं मिलेगा. दैट इज वाई USG कैन नॉट डिटेक्ट मैमोग्राफिकली इनडिटेक्टेबल ब्रेस्ट कैंसर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट PGI क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे मैंने बता दिया. So this was all about USG जो NICT में पूछा जाता है. लेट्स मूव टू MRI ब्रेस्ट. MRI ब्रेस्ट पे मैंने इतने सारे स्टार इतने दिए क्योंकि MRI ब्रेस्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कंसेप्ट इन NICT. बार बार MRI ब्रेस्ट से ही क्वेश्चन आते हैं. MRI ब्रेस्ट के मोडेलिटीज एंड MRI ब्रेस्ट के जो इंडिकेशंस इतने सारे हैं कि उसको बार बार NICT पूछता है. सो लेट्स बिगिन, ध्यान से सुनना. सो लेट्स बिगिन विथ MRI ब्रेस्ट. MRI ब्रेस्ट इज डन व्हेन अ पेशेंट हैज ब्रेस्ट इम्प्लांट. ठीक है, अगर पेशेंट में दिख रहा है कि तुम्हारे पेशेंट में ब्रेस्ट इम्प्लांट है, पेशेंट आई उसके पास ऑलरेडी ब्रेस्ट इम्प्लांट है, तो हमको MRI करना है. इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद ब्रेस्ट इम्प्लांट.
अब अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट की बात की है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के हमको रप्चर जानने हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लो। इसका रप्चर हो सकता है इंट्रा कैप्सुलर रप्चर या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर रप्चर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर। एंड इन केस ऑफ इंट्रा कैप्सुलर रप्चर में हमको एक साइन दिखता है जिसको हम बोलते हैं लिंगुइन साइन। दिस इज नोन एज लिंगुइन। लिंगुइन यानी जो पास्ता होता है इटली वाले, इसको लिंगुइन बोलते हैं। सो दिस इज लिंगुइन साइन। ये देखो नूडल्स टाइप, ये नूडल्स टाइप। So this is the linguine sign. It is the sign of intracapsular rupture in case of MRI. इंट्राकैप्सुलर यानी ब्रेस्ट का जो इम्प्लांट था वो अंदर ही रप्चर हो गया ब्रेस्ट के, तो वो नूडल्स जैसा साइन बना देगा, उसको हम बोलते हैं लिंगुइन साइन। एंड ये दिखता है ऐसा नूडल्स जैसा, लिंगुइन यानी नूडल्स इन इटली, ठीक है। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI। द सेकेंड थिंग जो है हमको याद रखना है, इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट between scar and recurrence. It is used to differentiate between scar and recurrence and family history of breast cancer and BRCA1 positivity. Very important, very important. Both of them are very important. Then we have, it is used investigation of choice for ductal carcinoma. दिस इज नॉट इतना इम्पॉर्टेंट बट दिस बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको क्वेश्चन मिले जिसमें एक पेशेंट आई है ब्रेस्ट कैंसर के रिकरेंस के साथ, अगर ये रिकरेंस है यानी जो पेशेंट आई उसको ब्रेस्ट कैंसर फिर से हुआ है या फिर एक स्कार था, जो ब्रेस्ट कैंसर का स्कार था उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन या स्कार के वजह से रिएक्शन हो गया, ये चेक करने के लिए हम MRI ही यूज़ करेंगे। सो अगर कोई तुमको क्वेश्चन मिल जाए जिसमें पता चले कि ये पेशेंट आई फिर से ब्रेस्ट कैंसर उसको लग रहा है, तो बिना सोचे हमको MRI ब्रेस्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की एंड BRCA1 पॉजिटिविटी दे देता है क्वेश्चन में, आंख बंद करके MRI ब्रेस्ट ही उसको इन्वेस्टिगेशन करवाना है। सो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया NICT में, बहुत इंपॉर्टेंट है। MRI ब्रेस्ट से बस 2-3 कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट वाला, BRCA पॉजिटिविटी वाला, एंड जो तीसरा है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्कार एंड रिकरेंस। एंड इन केसेस ऑफ रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर हमको MRI ब्रेस्ट ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इतना सिंपल था, 2-3 चीज इन एवरी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, चाहे MRI हो, USG हो, मेमोग्राम हो, बस 2-3 चीज हमको याद रखनी है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई है जो पूछी जा सकती है। सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। सो तुम पॉज करके सॉल्व करने की फिर से ट्राई करना, अब तुमको पक्का आ जाएगा। तुम अभी सॉल्व करोगे तो तुमको पक्का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले पॉज करना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग स्क्रीनिंग इन मैमोग्राफी। ये एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम मैमोग्राफी एक एक्सरे का एक्सपोजर दे रहे हैं, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में दे तो ही सेफ रहता है। सेकेंड हाफ में इट इज़ नॉट सेफ, बिकॉज सेकेंड हाफ में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन को अगर रेडिएशन मिल गया तो उसमें ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि उसकी वजह से जो एम्ब्रियो इफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट विल इंक्रीज विद एज। मैंने बताया था मेमोग्राफी जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ओल्डर फीमेल्स। इट इज़ बेस्ट परफॉर्म्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो, इट इज़ फॉल्स। सेकेंड हाफ में मैंने जैसे कि बताया एम्ब्रियो इफेक्ट हो सकता है, तो सेकेंड हाफ, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, मीडियोलेटरल ओब्लिक विल शो द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। मैंने बताया था मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखता है, यहाँ पे एक्सिला भी दिखेगा। एंड डी, क्रेनियोकॉर्डल व्यू विल प्रोवाइड बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट। ये भी मैंने बताया। सो द आंसर विल बी बी आया तुम्हारा आंसर। अगर तुमको सेकंड पॉइंट के बारे में नहीं भी पता होता, तुमको बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। जो पहला ऑप्शन था मैंने बताया था कि ये है स्क्रीनिंग मॉडलिटी ऑफ चॉइस फॉर ओल्डर फीमेल्स। मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू है, वो ज़्यादा एक्सिला का व्यू देता है, बेटर ज़्यादा वॉल्यूम बताता है ब्रेस्ट का। क्रेनियोकॉर्डल व्यू है, वो ज़्यादा मीडियल व्यू बताता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर बी आ जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। What are the findings in the mammogram which is least suggestive of malignancy? मैमोग्राम में कौन कौन से फाइंडिंग सजेस्टिव थे malignancy के? Irregular mass suggestive of malignancy, microcalcification, C microcalcification आएगा। Microcalcification is suggestive of malignancy, तो आंसर C आएगा। Spiculated margin यानी irregular margin suggestive of malignancy, halo is suggestive of malignancy, ठीक है। Now we move to answer question 3.
सो इसका आंसर था सी। आई होप तुम्हारा सी आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। विच पैटर्न ऑफ माइक्रो कैल्सिफिकेशन सीन इन पेशेंट? दिस इज एन एम्स क्वेश्चन। So this is an AIMS question. What is the finding of calcification suggestive of malignancy? बताओ क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा क्लस्टर और स्टिपलिंग माइक्रो कैल्सिफिकेशन। इट इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी एंड लीस्ट डिफ्यूज जो है लीस्ट सजेस्टिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन है NICT का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आंसर विल बी ए। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is 58-year-old woman presents with complaint of painless lump in her left breast which she noticed during routine self-examination. Hard lump with irregular margin, left axial lymph nodes were not found. Which is the best modality to detect malignancy? एज क्या है पेशेंट की? 58-year-old यानी मोर देन 40. मेमोग्राम करो. अब मैंने तुमको बताया था मेमोग्राम को और क्या बोलते हैं? टोमोसिंथेसिस. मेमोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड टोमोसिंथेसिस. अब इसमें हम क्या करेंगे? 2D मेमो करेंगे, डिजिटल मेमो करेंगे, टोमोसिंथेसिस विद कन्वेंशनल या फिर फुल फील्ड डिजिटल. जो टोमोसिंथेसिस है वो 3D मेमोग्राफी है. 3D हमको ब्रेस्ट का 3D व्यू भी मिलेगा, 2D व्यू भी मिलेगा. कन्वेंशनल मेमोग्राफी 2D व्यू है, टोमोसिंथेसिस 3D व्यू है. तो हमको ओवरऑल हमको जो मैलिग्नेंसी है वो मिस होने का चांस ही नहीं है अगर हमने 3D 2D दोनों कर लिया. दैट इज वाई द आंसर विल बी सी. गॉट इट? ओके. देन वी कम टू अनदर क्वेश्चन. सीधा सीधा मैंने लाइन बताया, ये सीधा एम्स का क्वेश्चन है. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. USG कैन डिटेक्ट लिम्फ नोड इन 50 to 60% केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विच आर नॉट डिटेक्टेड इन द क्लिनिकल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन. यानी आंसर विल बी ए. क्लिनिकली तुमको ब्रेस्ट लम्प नहीं मिला, USG डिटेक्ट कर लेगा ब्रेस्ट लम्प यानी एक्सिला लिम्फ नोड इन 50 to 60% केसेस. सीधा क्वेश्चन है NICT का. एंड ये है 3 क्वेश्चंस जो साथ में मैंने इसीलिए दिया. अब पता चलेगा ये तीनों साथ में क्यों है. यंग फीमेल विद पेनलेस लंप इन हर राइट ब्रेस्ट, शी अंडरवेंट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी 3 years बैक. यानी 3 साल पहले भी इसको ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की गई है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट टू असेस द ब्रेस्ट टिश्यू इन दिस पेशेंट? बताओ क्या आएगा? 3 साल पहले भी एक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी की गई है यानी रिकरेंस के चांसेस है. अब हमको देखना है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं. So the answer will be MRI. Very important. Answer is C. ठीक है. 40-year-old woman with BRCA1, सीधा दे दिया BRCA1 म्यूटेशन प्रेजेंट विद नॉर्मल मेमोग्राफी रिपोर्ट विच इज द नेक्स्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टिगेशन. म्यूटेशन है, BRCA1 है, फैमिली हिस्ट्री. आंसर विल बी MRI. डन, खत्म बात. नो सेकेंड थॉट. So now we will solve the last question of the day. The last question is 22-year-old woman is found to have BRCA1 mutation. BRCA1 mutation यानी MRI तो करना ही है. ठीक है. She got herself tested with her due to mother's death due to breast cancer. मदर की डेथ हो गई BRCA1 mutation की वजह से. At what age and with what modality would you start the breast cancer screening? तो जो MRI वाले केसेस है वो तो हमको रखना ही ऑप्शन में. MRI किस में है? MRI this. तो दिस इज अ वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन. ऐसे ही क्वेश्चन NICT पूछता है. सो सी, अगर हमने 40 ईयर से स्टार्ट किया, अब उसकी मम्मी में ब्रेस्ट कैंसर था तो वेरी हाई चांस BRCA1 अगर होता है म्यूटेशन, वेरी हाई चांस कि उसके बेटी में भी ब्रेस्ट कैंसर होगा. तो क्या अब हमको MRI तो देखना ही है क्योंकि BRCA1 म्यूटेशन की जो पॉजिटिविटी है MRI में सबसे अच्छे से डिटेक्ट होती है. तो हमको MRI तो करना ही है. अब ऑप्शन में है 25 साल से स्टार्ट करें MRI या फिर 40 साल से. सो क्या चुनोगे बताओ? 40 साल पे अगर हमने मेमोग्राम करने गए या फिर MRI करने गए तो 25 साल पे ब्रेस्ट कैंसर होगा. 40 साल पे हम डिटेक्ट कर रहे हैं, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत एडवांस स्टेजिंग में पहुंच जाएगा. दैट इज वाई आंसर विल बी डी. क्योंकि MRI तो हमको करना ही है, MRI हमको करना ही है. उसके साथ हम मेमोग्राम करेंगे. 25 चाहे एज 25 है बट हमको MRI में अच्छे से डिटेक्ट हो जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर है. ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन था. आंसर विल बी डी. हमको MRI के बेसिस पे हमने आंसर डी मार्क किया एंड एज के बेसिस पे हम 40 साल तक नहीं रुक सकते मैलिग्नेंसी डिटेक्ट करने के लिए. सो दिस वाज इट विद टुडेज क्लास ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन ब्रेस्ट एक्सरे. आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड आई होप कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एट द एंड. एंड आई होप कि तुमको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द NICT पॉइंट ऑफ व्यू. And I hope you found this lecture helpful and crisp and as well as concise. So thank you for watching till the end. Jai Hind. Bye.